رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، نیکیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جسے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو عافیت میں رکھے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی جو بہت ہی آنے سے پہلے نیتوں کا آپ ہمیشہ جائزہ لیتے ہوں گے۔ جب تک کوئی بھی کام بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نہ کیا جائے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنی نیتوں کی اصلاح کے لیے دعا بھی کیجیے اور مدد بھی مانگیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے الحمدللہ ہم چلتے ہیں اپنی بہت ہی خوبصورت سی کتاب جنت کی کنجیاں، جو کہ آپ کے لیے ایکشن کے پوائنٹ ہیں کہ جس سے میں اور آپ سیکھیں گے کہ کیا وہ کام ہے جو جنت کی کیز ہیں، جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جو دیکھیں گے وہ 56 دیکھیں گے۔ چلیے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے جو 56 اس کا عمل ہے کہ لین دین کے معاملات میں نرم برتاؤ کرنا۔ عطا بن فروخ قریشیوں کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے زمین خریدی، پھر اس نے کیا کیا، اس نے طے شدہ رقم لینے میں تاخیر کر دی۔ پھر وہ آپ سے ملا تو آپ نے اسے کہا تمہیں تمہارا مال لینے سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں جس آدمی سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ آپ نے کہا کیا یہ چیز تمہیں روکے ہوئے تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا اپنی زمین اور اپنے مال میں سے جسے چاہو پسند کر لو، یعنی اگر زمین واپس لینا چاہو تو لے لو اور اگر رقم لینا چاہو تو وہ لے لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، ادائیگی کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کی یہ 243 نمبر اس کا ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے نا اس حدیث میں کہ انسان جب لین دین کا معاملہ کرے، مراد ہے کہ کوئی تجارت کرتا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نرمی کا، جسے کہا جائے، مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے
एक तो बड़े पैमाने पर मुल्कों का आपस में एक-दूसरे के साथ लेन-देन होता है ना, खा फूड के हवाले से, किसी भी हवाले से। और एक लेन-देन वो होता है कि जो हम छोटे-छोटे बिज़नेसेस की शक्ल में करते हैं ना। अगर हमें ये बात याद रहे कि ऐसे बंदे को जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमाएँगे, जो लेन-देन करते वक़्त, खरीदो-फ़रोख्त करते वक़्त, अदायगी करते वक़्त, तकाज़ा करते वक़्त नरमी का मुज़ाहिरा करे। तो वही बात है कि अगर आप किसी के साथ इंशाअल्लाह नरमी का मुज़ाहरा करेंगे और लोगों का उनका हक़ देने वाले और अपने हक़ से कम लेने वाले होंगे, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ आपको कल जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि जब भी हम इस तरह की कोई जिसे कहा जाए डीलिंग करें, किसी के साथ मामला करें, लेन-देन का स्पेशली, तो ऐसे मौके पर हमें ये बात याद रहे कि हमें इसमें नरमी का मुज़ाहरा करना है। फिर देखिए कि तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज़ से बचना। सुबैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फ़ारक़ रूहुल जसद व हुवा बरीउन मिन सलासिन दख़लल जन्नह मिनल किब्रि वल गुलूली वद्दैन। जो रूह जिस्म से जुदा हुई और वो 3 चीज़ों यानी तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज़ से बरी थी, तो वो जन्नत में दाखिल होंगी। कितनी अहम ये हदीस है। आप सोचिए कि जो रूह, जो स्पिरिट आपके अंदर, एक आपकी आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक सोल है, एक रूह है। जब वो अपने जिस्म से अलग होगी, तो आप सोचिए वो कहा जा रहा है कि जब वो जुदा हुई, वो 3 चीज़ें यानी तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज़ से बरी थी, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। आज कितने लोग हैं जो तकब्बुर का शिकार है ना, आज कितने लोग हैं जो ख़यानत का शिकार हैं और कितने लोग हैं जो कर्ज़ के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। तो याद रखिए ये चीज़ें आपके लिए जन्नत में रुकावट बन जाएँगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर इस बात पे गौर व फ़िक्र कीजिए और आप देखिए कि तकब्बुर की तारीफ़ हदीस में कैसे बयान हुई है। बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, हक़ का इनकार करना और लोगों को हक़ीर जानना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान, आपने देखा ना कि जैसे फ़िरौन था, क़ारून था, हामान था, है ना? तो आप देखिए उनके पास तो बहुत दुनिया की नेमतें थी, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने किंगडम दी हुई थी। लेकिन हक के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझा और लोगों को हकीर जाना। ये है बतरुल हक व गम्तुन नास, के हक का इनकार करना और साथ साथ क्या, साथ साथ जो है लोगों को हकीर जानना। ये वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई जब आपने फरमाया, ऐसा कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हो। ये सुनकर एक आदमी ने अर्ज किया, क्या आदमी पसंद करता है किसका, कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो ये है कि हक का इनकार किया जाए। ये मुराद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जानने के बाद भी उससे मुंह मोड़ा जाए और लोगों को हकीर समझा जाए। ये है तकब्बुर। अल्लाह ना करे हम में से कोई तकब्बुर की चादर ओढ़कर अपना रास्ता जहन्नुम में बनाए। आप देखिए ज़रा राई के दायरे के बराबर बराबर भी तकब्बुर होगा तो ये चीज़ जन्नत में रुकावट बन जाएगी। जन्नत में दाखिले के लिए एक तरह से एक हिंड्रेंस बन जाएगी ना। तो ज़रूरी कि आप अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दिखावा नहीं हो, शो ऑफ नहीं हो, अपने आप को बड़ी चीज़ समझना नहीं हो। तो देखिए अल्लाह ताला तो खुद इतनी खूबसूरत है ना, खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन अगर यही आपका पहनना, ओढ़ना, रहना, खाना-पीना लोगों को दिखाने के लिए और अपनी ज़ात की बड़ाई के लिए होगा, तो ये कल आपको हक़ीर बना देगा। असल में क्या है ना कि किब्रियाई को अल्लाह ताला ने अपनी चादर कहा है और ये भी वज़ाहत फ़रमाई है कि जो मुझसे उसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे जहन्नुम में फेंक दूँगा। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है। जहन्नुम में जाने वाले लोगों की एक सिफत ये भी बयान की गई है कि वो मुतकब्बिर होंगे। मुतकब्बिर लोग ही जहन्नुम का हिस्सा बनेंगे ना। इसी तरह और रोज़े क़यामत जिन 3 अफ़राद से अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, कलाम नहीं करेंगे और ना उनको प्यूरीफ़ाई करेंगे, उनका तज़किया फ़रमाएँगे और ना ही उनकी तरफ नज़रे रहमत फ़रमाएँगे।
देखिए 3 बहुत अहम बात है। एक तो नंबर 1 उनसे बात ना करना, ना उनका तज़किया करना, ना उनकी तरफ नज़र की रहमत से देखना, बल्कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेंगे। उनमें से एक मुतकब्बिर फ़कीर है। मुतकब्बिर फ़कीर कि यानी अगर आप उसको कुछ देते भी हैं, तो इतना तकब्बुर वाला कि उसको वो रकम पसंद ही नहीं आती। आप देखिए एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है गुलूल जिसे कहा जाए ख़यानत, माली गनीमत में ख़यानत, यानी इसकी तक़सीम से पहले ही बगैर इजाज़त कुछ ले लेना, ये भी हराम है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर ख़यानत करने वाला क़यामत को लिए हुए क़यामत के दिन हाज़िर होगा। यानी किसी ने कोई भी ख़यानत की हो, ख़ासकर माली गनीमत में ख़यानत, तो वो कल इसको लेकर आएगा। आली इमरान 61। और एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ुलाम बतौर हदिया दिया जिसका नाम मुदअम था। एक दफ़ा मुदअम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा उतार रहा था कि एक तीर उसे आकर लगा और उसने उसे कत्ल कर दिया, यानी तीर लगा और जाके वो कत्ल हो गया। लोग कहने लगे इसको जन्नत मुबारक हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो उसने खैबर के दिन माल गनीमत से क़बल अज़ तक़सीम पकड़ ली थी ना, उस पर आग बनकर शोला मार रही है। जब लोगों ने इस बात को सुना तो एक आदमी क़यानत का एक तस्मा या 2 तस्मे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तस्मा या 2 तस्मे भी आग से हैं। अल्लाहु अकबर! आप सोचिए कि स्पेशली वो लोग, ये तो माल गनीमत की बात हो रही है ना, कि जंग के बाद जो माल आता है उसको माल गनीमत कहा जाता है, और उसमें बगैर तक़सीम के आप पहले से ख़यानत कर लें तो कल वो आग का शोला बन जाएगी। आज भी दुनिया में कितनी ख़यानत है ना, किसी का माल कौन ग़बन कर रहा है, चाहे विरासत की शक्ल में देखें, वैसे ही जिसे कहा जाए ग्लोबल सतह पर भी देख लें, और वैसे भी देखें जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो काम कर रही हैं, सबके माल जो इकट्ठा करती हैं, उन पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के माल को सही जगह पर तक़सीम करें, वरना कल ये आग का शोला बन जाएगी। अगर जो कहा है वो ना किया, तो अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ कीजिए कि अगर अल्लाह ताला हमें इस तरह की जिसे कहा जाए मतलब स्टेटस के अंदर लेकर आए, तो हम वाक़ई जो जिस मकसद के लिए हमने लोगों का माल इकट्ठा किया है, तो हम उसको उसी जगह पर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। इसी तरह देखिए कर्ज़ लेना देना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कर्ज़ में ताख़ीर से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौत किसी लम्हे भी आ सकती है, और फिर ये कर्ज़ रोज़े क़यामत कर्ज़ख्वाह को नेकी देने या उसके गुनाह लेने की सूरत अदा करना होगा। अल्लाहु अकबर! इसी तरह कर्ज़ लेकर उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना, या अगर जिससे कर्ज़ लिया है वो भूल गया है या वो फ़ौत हो गया है और उसके दूसरे किसी रिश्तेदार को उस कर्ज़ दी हुई रकम का इल्म भी नहीं, तो कर्ज़ अदा ना करना बल्कि इस बात को भी छुपा ही लेना, ऐसे तमाम कामों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि क़यामत के रोज़ अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो अपने हुकूक तो माफ़ फ़रमा देंगे, लेकिन बंदों के जो हुकूक हैं वो माफ़ नहीं होंगे। फिर वहाँ जिसका जो माल भी नाजायज़ तरीक़े से हड़प किया होगा, उसे वापस अदा करने के लिए वो तो माल तो नहीं होगा, बल्कि जिसका जितना हक खाया होगा उसे उसके बराबर नेकियां देनी होंगी, और अगर नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उसके बराबर उससे गुनाह लेने होंगे। फिर इस तरह कितने ही नमाजी, रोजेदार, हज करने वाले सकी जन्नत में जाते जाते जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुकूकुल इबाद की अदायगी की तौफीक दे। आप देखिए अभी मैंने रिसेंटली किसी का सुना कि उनकी डेथ हो गई ना, और डेथ से पहले उन पर काफ़ी कर्ज़ा था। इवन उनकी जो जिसे कहा जाए मतलब घर का भी कर्ज़ा था, मतलब वैसे सूद पे नहीं था, लेकिन किसी से कर्ज़ लिया हुआ था सूद को पे करने के लिए। तो एज़ सच सूद नहीं था, लेकिन कर्ज़ ठीक है, घर पेड ऑफ नहीं। फिर आप देखिए कि जो उनकी तदफ़ीन हुई, वो भी जिसे कहा जाए कर्ज़ लेकर हुई। तो मैं यही सोच रही थी कि आज हमें पता हो कि इंसान को अगर किसी से कर्ज़ ले, ठीक है, लेने में ये इसमें इसमें कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है, इंसान ले दे सकता है।
لیکن تاخیر سے بچنا چاہیے، جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ پھر یہ چیز آپ کے لیے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آج اگر آپ نے ادا نہیں کیا اور آپ یوں ہی چلے گئے اور آپ کے جو پیچھے لواحقین ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو کل آپ کو، کیونکہ آپ نے اسٹارٹ لیا تھا، آپ نے لیا تھا، تو کل آپ کو نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کی برائی، جس سے قرض لیا تھا اس کی برائی لینی ہوگی، کیونکہ کل تو مال اور متاع تو کل فائدہ نہیں دے گا، کل آپ زمین بھر کا بھی سونا دینا چاہیں گے کہ آپ بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج لین دین میں اگر میں اور آپ محتاط ہوتے ہیں اور لوگوں کے قرض اگر آپ کے اوپر ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس میں جلدی کیجیے، اور لوگوں کو اگر آپ نے لیا ہوا تو ان کو جلد سے جلد ادا کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو، ہم سب کے کاموں کو آسان کر دے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کتنے ایسے کیسز ہیں جو سننے میں آئے تھے، آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے نا سننے میں، لیکن ایسے موقع پر آپ دیکھیں کسی کا قرض اتارنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے وہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے نا، جو قرض کے لین دین میں نرمی برتتا ہے نا، مراد ہے کہ مطلب اس کو مطلب ڈیل دے دیتا ہے، مطلب لانگ ٹائم دے دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، تو کل اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کسی کا قرض ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ابھی سے نیت کر لیجیے، تاکہ ہمیں نہیں پتا موت کب مجھے اور آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے نا، تو اپنے دل میں نیت کر لیجیے کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے دے دیا تو دے دیا، اور اگر نہیں دیا تو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، کافی ڈیٹیل والے کام تھے، لیکن یہ وہ کام ہے جو انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے ان کاموں کو آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آج ہماری سورۃ الکہف کی لاسٹ آیت ہے 110۔ امید ہے کہ آپ نے فرسٹ 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات، جو کہ آپ کو پتہ ہے فتنہ دجال کے لیے مطلب اس سے رکاوٹ بن جائے گی، انشاءاللہ اگر آپ اس کو میمورائز کریں گے نور کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کو انشاءاللہ کوشش کر کے اپنے طور پر پریکٹس کیجیے، اور آج آپ کی پوری لاسٹ کی 10 آیات ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی تیاری ہو تو نیکسٹ ٹیوزڈے سے پہلے آپ نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ان آیات کو بائی ہارٹ انشاءاللہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے لاسٹ آیت کو دیکھیے، اس کا پہلے لفظی ترجمہ اینڈ دین پھر انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن اور تھوڑا بہت اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجیے، انما بے شک انا میں بشرن ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن تو جو کوئی کانا ہو وہ، یرجو وہ امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، رب ہی اپنے رب سے، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا اور نہ یشرک وہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی اور عبادت میں، رب ہی اپنے رب کی، احدا کسی ایک کو۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب نے مصحف کھولا ہوا ہے، ون ٹائپ کیجیے، شاباش۔ تو انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی لاسٹ آیت کی طرف، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ سب ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، سسٹر شبینہ نے ٹائپ کیا، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے امید ہے کہ آپ سب ٹائپ کر رہے ہوں گے، مصحف سامنے کھولا ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ किया होगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है। थोड़ी-सी इसकी तजवीद देख लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिस करिए तो तजवीद के साथ। सबसे पहले देखिए, कुल लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, कुल ऐसे करके नहीं, ठीक है? कुल ऐसे करके अक्सर लोग बाउंस करते हैं ना, तो कुल पे अगर आप लाम पे थोड़ा-सा तवस्सुत लेटर है ना, ज़रा-सा टाइम देंगे ना, तो बाउंसिंग इफ़ेक्ट चला जाएगा। कुल इन्नमा, अब नून पे आपको पता है कि शद है ना, यानी डब्ल्यू सा साइन है, शद्दा है, तो आप इस पे टाइम दीजिए, यानी इन ये नीज़ल साउंड आपका आएगा, आपकी जो आवाज़ है वो नीज़ल कैविटी में जाएगी। और ये जो गन्ना है बाउंड, ये जो है ये बेसिकली क्या है, मोस्ट कंप्लीट गन्ना। इंशाल्लाह आपने रैंकिंग ऑफ गन्ना पढ़ा है ना, मरातिबुल गन्ना, उनमें से वन ऑफ द कैटेगरी है मोस्ट कंप्लीट गन्ना, अकमल गन्ना। तो इन्नमा इसमें जो है मोस्ट कंप्लीट गन्ना होल्ड फॉर टू काउंट, बट अकॉर्डिंग टू योर रेसिटेशन, आपकी आपकी स्पीड कैसी है रेसिटेशन के अंदर ना, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। इन्नमा, माँ को आपने स्ट्रेच करना है 4 to 5 काउंट। क्यों? क्योंकि आपको देख रहे हैं कि इन्नमा के ऊपर मद का साइन है ना, और जब मद आती है उसका रीजन होता है मद बनने का ना, ये मद्दुल फरई है। एक होती है नेचुरल मद, और एक होती है जिसे कहा जाए फरई, जैसे ब्रांचेस ऑफ द मद, राइट? तो उसके रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन हमजा होता है, वन ऑफ द रीजन क्या होता है, हमजा होता है। जब हमजा नेक्स्ट वर्ड में आता है ना, जैसे इन नमा के अंदर ये एक वर्ड है, आना ये नेक्स्ट वर्ड है, तो हमजा इसमें नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। तो ये जो अगर हमजा नेक्स्ट वर्ड में आता है तो इसको कहते हैं मद्दुल जायज मुनफसिल, मद्दुल जायज मुनफसिल, डिटैच मद, ठीक है? हमजा उसके साथ अटैच नहीं है, बल्कि डिटैच है, मुनफसिल है। तो इसको आप कितना काउंट स्ट्रेच करेंगे, 4 to 5 काउंट। इन्नमा अना, अब यहाँ पे देखिए अना, इस पे आप देखिए, अगर अरबी का मेरे पास उस्मानी मुसहफ है तो उसमें ये सर्कल सा बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसको 2 काउंट नहीं पढ़ रहे, आप इसको 1 काउंट पढ़ रहे, अना नॉट अना, क्योंकि आपको पता है कि फतहा की दोस्ती अलिफ के साथ है। जब जब भी नून फतहा ना, नून फतहा अलिफ सुकून ना ना ना, लेकिन आप यहाँ पे 2 काउंट नहीं पढ़ रहे, आप यहाँ पे क्या काउंट पढ़ रहे हैं, एक काउंट पढ़ रहे हैं। याद रखिए, जब अना इन बिटवीन द आयत आता है तो उसको एक काउंट पढ़ा जाता है, ये एक्सेप्शन है। और अरबी मुसहफ के अंदर, उस्मानी मुसहफ के अंदर आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है, जैसे ओवल सा साउंड नजर आ रहा है, ठीक है ना, सर्कल तो नहीं, ओवल सा। तो अब अगर आप यही अना एंड में आता, जैसे अगर मैं इसको रोकती, इन्नमा अना, अब मैं रोकूंगी अना, 2 काउंट करके रोकूंगी, ठीक है, मेरी सांस टूट गई या स्टॉपिंग साइन आ गया, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको आपने फिर 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है? अना ऐसे करके, अना बशरुम मिस्लुकुम, ठीक है, इंशाल्लाह। बशरुम, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि तनवीन के बाद साउंड ऑफ द तनवीन कंप्लीटली रोन के बजाय रोम हो रहा है, सो कंप्लीटली मर्ज हो गई मीम के अंदर। तो आप क्या कहेंगे, बशरुम मिस्लुकुम, तो ये आपका इदगाम है। इदगाम का मतलब क्या होता है, जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद 6 लेटर्स आ जाए, या और रा मीम लाम वाव नून, तो साउंड ऑफ द तनवीन मर्ज हो जाती है इन लेटर्स के अंदर, ठीक है? कभी पार्शली होती है, कभी कंप्लीटली हो रही है। तो यहाँ पे रोन की बजाय रो में, तो कंप्लीटली तनवीन की आवाज मीम के अंदर मर्ज हो रही है। तो ये क्या है, कामिल इदगाम, या जिसे कहा जाए आप कंप्लीट इदगाम कह लीजिए, विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना के साथ। आप इसमें होल्ड भी करेंगे, जहां आप आवाज को मीम के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, साथ साथ आप जो है होल्ड फॉर 2 काउंट। बशरुम मिस्लुकुम, ठीक है, इंशाल्लाह साफी हम्स कीजिएगा। लुकुम, काफ दम्मा मीम सुकून खुम, काफ की दम्मा को वाज़ेह करते हुए मीम को जैसे कहा जाए नाकस गुन्ना कीजिएगा। यूहा इलैया,
यू ये आपकी वाव मद्दिया है। यू आपने 2 काउंट पढ़ना, या दम्मा यू, या दम्मा वाव सुकून यू। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, ये आपका मिडल ऑफ थ्रोट से अदा होगा। आप देख रहे हैं कि अगेन मद का साइन ऑन द टॉप आ रहा है ना, तो आपने इसको, क्योंकि इसका रीज़न है कि हमज़ा नेक्स्ट लेटर में आ रहा है इलैया, तो आपने इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करना है, और ये आपकी मद्दुल जाइज़ मुनफसिल डिटैच मद इलैया। यहाँ पे थोड़ी-सी आपकी आवाज़ एलिवेट होगी, यानी जब भी नबर का रोल है, नबर का मतलब होता है आवाज़ को बुलंद करना, ठीक है? आवाज़ को ऊँचा करना। तो अब आप देखिए, मैं इलैया पढ़ दूँ, तो इलैया तो या की आपकी शद की अदायगी सही नहीं हो रही। इलैया, ये जो आपने थोड़ा-सा प्रेशर दिया और जिसकी वज़ह से आवाज़ आपकी ऊपर हुई, तो ये बेसिकली नबर है ना। तो यहाँ पे जिसे कहा जाए, जब भी या एंड वाव पे शद्दा आता है, थोड़ी-सी आवाज़ को एलिवेट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द नबर। अन्नमा सेम इन्नमा, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वही रूल है ना, इसको बिल्कुल वैसे ही देखिएगा। इलाहुकुम, इला आपको 2 काउंट पढ़ना है, हुकुम काफ की दम्मा वाज़े करते हुए, मीम साकिन है, तो आपको नाक़िस गुन्ना करना है, खुम, इलाहु वाहिद। ठीक है? अब आप देखिए, तनवीन के बाद वाव आ रहा है, यरमलून का लेटर है ना, तो अब आपको पता है कि यहाँ मर्जिंग तो हो रही है, लेकिन इनकम्प्लीट है, नाक़िस इदगाम है, क्योंकि तनवीन की साउंड आपको सुनाई दे रही है। इलाहु वाहिद, ठीक है ना? तो अब आपने क्या करना है कि ये इदगाम तो है, लेकिन नाक़िस इदगाम है, और फिर आप कहेंगे कि इसमें जो गुन्ना है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो दाल पे क़लक़ला कीजिएगा, ठीक है? वाहिद, फमन, अब देखिए मीम के नून साकिन के बाद अगेन क्या क्या आ रहा है, तो ये आपका लेटर्स जो है इख्फा के लेटर्स हैं, तो फमन हैवी नहीं कीजिएगा, बस काफ के मखरज के करीब आपकी ज़बान होगी, तो इंशाल्लाह हैवीनेस नहीं होगी। فَمَن كَانَ क्या 2 काउंट अलिफ मदिया यरजू रॉ को हैवी कीजिएगा। रॉ से जब भी या साकिना से पहले फतहा होती है तो उसको हैवी किया जाता है। यरजू ये साउंड नहीं आनी चाहिए, ये वाली यरजू ये नहीं, एयर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इसको रोकना है, और इसका तरीका क्या होगा कि आप अपनी जो मिडल पार्ट ऑफ आप जीम शीन या इनमें जो आपका जो ऊपर का जो हार्ड पैलेट है ना, मिडल पार्ट का, जब ज़बान जिसे कहा जाए मिडल पार्ट पे लगती है ना, तो कहने का मकसद है जीम के लिए आप मिडल पार्ट का वो हिस्सा इस्तेमाल कीजिए, अशा, यानी शीन के लिए तो मिडल पार्ट ओके है, या के लिए मिडल पार्ट का वो हिस्सा जो हलक की तरफ है, जीम के लिए मिडल पार्ट का वो हिस्सा जो कि मुंह की तरफ है। अजा, जा, झ, ये साउंड नहीं आनी चाहिए। अजा, जा, एयर नहीं आ रही, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा पीछे से अपना मिडल पार्ट को क्या का हिस्सा लूँ, अजा, जा, ये आ रही एयर, साफ फील हो रहा है, एयर आ रही है ना? तो थोड़ा-सा इसको देखिएगा, यरजू, जू में एयर नहीं आनी चाहिए, वाव साकिना है। 2 काउंट, लिक़ा, लिक़ा, आपको पता है कि हम आप देख रहे हैं कि इसमें टॉप पे आपको मद नज़र आ रही है, और नेक्स्ट लेटर यानी इसी वर्ड का हिस्सा है हमज़ा। तो अब आप कहेंगे ये भी तो मद है, लेकिन मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है। जब हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा होता है तो मद्दुल वाजिब मुत्तसिल, और अगर हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा होता है तो मद्दुल जाइज़ मुनफसिल, ठीक है? लिक़ाअ रब्बिही, ठीक है ना? इंशाल्लाह आपने इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करना है, और रॉ को आपने हैवी करना है। रब्बिही आपकी मद्दुल सिलतुल सुग़रा है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था, है ना? कि ही जो है वो बेसिकली उससे पहले वाले लेटर में हमज़ा नहीं है। हमज़ा अगर होता तो ये एक तो नंबर 1 थर्ड पर्सन की ज़मीर हो, प्रोनाउन हो, नेक्स्ट लेटर हमज़ा नहीं होना चाहिए, और उससे पहले वाला लेटर वॉवेल साइन हो, मुतहर्रिक हो। तो ये मद्दुल क्या बन जाती है? मद्दुल सिलतुल सुग़रा। ही को आपने पूरा 2 काउंट पढ़ना है। फल यहाँ पे बाउंस नहीं कीजिएगा, इसमें थोड़ा-सा टाइम देंगे तो बाउंसिंग इफ़ेक्ट निकल जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना है, फलियअमल नहीं, फलियअमल अमलन सालिहा।
मेक श्योर कीजिएगा या की फतहबाज़ी करते हुए ऐन को मर्ज कीजिएगा, लम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, अमलन सालिहा। तनवीन के बाद सॉद आ रहा है तो इसमें भी आपका इख्फ़ा होगा और फिर उसके बाद सॉ को हेवी कीजिएगा। अगर आप इसको रोकते हैं तो 2 काउंट करके रोकिए और अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर इदगाम हो जाएगा। मैंने रोका था तो मैंने इसको 2 काउंट करके रोका, मद्दुल इवद बन गई, ठीक है? लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इदगाम बन जाएगा विद गुन्ना, लेकिन ये इनकम्प्लीट इदगाम होगा। वला ला अलिफ मदिया युशरिक, शीन पे आपका तफशी है, रिक काफ पे आपका शद्दा भी है और हम्स भी है। बी बा बा को आपको 2 काउंट पढ़ना है। दती दी ता की कसरा शार्प रखेगा और रब्बी ही। अब आप देखिए ही को आप स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि आपको मद का साइन नजर आ रहा है, राइट? तो क्यों आप इसको 4 टू 5 काउंट पढ़ेंगे। ये मद्दुल सिलातुल कुबरा है, ठीक है? जब भी थर्ड पर्सन की ज़मीर आ जाए और इसकी कंडीशन होती है नेक्स्ट लेटर में हमज़ा होना ज़रूरी है। आप देखिए अहदा हमज़ा आ रहा है ना, तो आप इसको 4 टू 5 काउंट पढ़ेंगे। रब्बिही अहदा, ठीक है? अब जब इसको रोकेंगे तो ये आपकी बन जाएगी मद्दुल एवज। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर। मैं थोड़ा-सा टाइम देख रही थी, हमारा ऊपर हो गया। मैं क्विकली इंशाल्लाह इसकी तफसीर कर देती हूँ ताकि आपके ज़हन में जब आप इस आयत को देखें तो आपके लिए आसानी हो इंशाअल्लाह बिल अज़ीज़। चलिए, इन आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, क्या है कि मेरी जानिब वही की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत के लिए चुना था, यानी आप भी बशर थे, एक इंसान थे। आप कोई जिसे कहा जाए नूर नहीं थे। आपकी सिफ़ात थी कि आप जिसे कहा जाए लोगों को इंसान करने वाले थे ना, खुशखबरी देने वाले थे। तो ये जो अक़ीदा है ना कि आप जिसे कहा जाए अल्लाह ताला कुरान की आयत में कह रहे हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लु, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। मैं जैसे एक आम इंसान होता है, मैं भी इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उनसे तमाम इब्ने आदम को पैदा किया। आप देखिए कि एक इंसान है। बस फ़र्क क्या है कि मेरी तरफ वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। सबका जिसे कहा जाए क्रिएटर एक ही क्रिएटर है। चुनांचा करना क्या है? जब सबका माबूद एक ही माबूद है तो चुनांचा जो कोई अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है, हम में से हर कोई चाहता है ना अपने रब से मिलने की आरज़ू। तो क्या करें जब इतनी ख़्वाहिश है अल्लाह ताला की मुलाकात की, उससे मिलने की, तो क्या करें? नेक अमाल करें और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करें। बाज़-वक़्त हम नेक काम करते हैं सिस्टर, लेकिन नेक काम तो होता है लेकिन वो राइचियस डीड नहीं होता। एक वो गुड डीड तो होता है लेकिन वो राइचियस डीड नहीं होता। तो नेक अमाल के लिए कंडीशन है और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो नेक अमल कम अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। वो एक तरह से रब की इबादत के अंदर शरीक हो जाएगा। तो नेक अमल की जो कंडीशंस होती हैं, उनमें से पहली कंडीशन की तौहीद। तौहीद के बगैर कोई अमल कम अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट नहीं है। नंबर 2 इखलास, अल्लाह की खातिर हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। हमारा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंसान का जीना, मरना, उसकी कुर्बानी, उसकी नमाज़ सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो जाए। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि वो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो ना। जब तक वो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर वो अमल साले के अंदर फ़ॉल नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग नेक अमल करते हैं, लेकिन साले अमल नहीं करते, क्योंकि कंडीशंस नहीं पता, तो फिर जब पता ही नहीं है, तो नेकी समझ के बहुत सी बिदअत अपनी ज़िंदगी में करते हैं और समझते हैं कि बेचारे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। लेकिन कल हमें पता चल जाएगा कि जब हम अल्लाह की आयत को खोलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि राइचियस डीड होता क्या है। अब आप एक कमरे में बैठ जाएं, अल्लाहू अल्लाहू करते रहें, कितना अच्छा अमल है कि बहुत सारी बुराई से बच गए। कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे, बस अपनी ही जिंदगी में लगे। लेकिन क्या ये राइचियस डीड होगा? अमलन साले होगा? क्या इस्लाम में रहबानियत है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को बंद कर लें? तो बस वही बात है कि आप कितना
ہی اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو جب تک اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں جانتے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ عملاً صالحاً کیا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جسے کہا جائے دین کے نام پر کیا کچھ نہیں کام نہیں کر رہے، لیکن ایک دفعہ دیکھیں تو قرآن مجید کو اٹھا کے کیا قرآن اس عمل کو عملاً صالحاً کہتا ہے؟ کیا وہ ان شرائط پر اترتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ آپ کو کہیں گے 215 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، 313 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، 425 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، اور کہیں دلیل موجود نہیں ہوگی قرآن و سنت میں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز قرآن سے آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ کوانٹٹی کو آپ نے فکس کر کے دوسرے کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپ کتنی دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اگر آپ اس کے لیے خاص اہتمام کریں، 10-20 لوگوں کو بلا لیں اور سب کے ہاتھوں میں تسبیحات پکڑا دیں اور سب تسبیحات پانی میں ڈالیں، اس کو اتنا جلا لیے اور اس کے بعد سب جیسے کہا جائے پڑھتے جا رہے ہیں، سچ بتائیے کیا یہ سنت کا عمل ہے؟ آپ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس کلمے کو پڑھے گا مصیبت کے وقت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں یونجی کا ورڈ آتا ہے یا اسی طرح کا کوئی نجات کا ورڈ آتا ہے، اللہ ضرور اس کو اس کرب عظیم سے نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی اتنی بدعت ہے کہ جو سامنے والا آ رہا ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے، بس پڑھا ہی جا رہا ہے۔ ایک لفظ کو تو سوچیں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں نا؟ تو بہت ضروری ہے کہ اس قرآن مجید کا اور احادیث کا علم حاصل کیا جائے تاکہ میں اور آپ رائچیس ڈیڈ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جو لوگ رسالت کو جھٹلانے والے مشرک ہیں نا، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ غیب جو ہے سارے کے سارے خزانے اللہ کے اقتدار میں، اللہ کے پاس ہے۔ تو میں تو اپنے رب کی جسے کہا جائے عبادت کروں گا، میں اس کی معبودیت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات آتی ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ کتنا عجیب سا سوال ہے نا، کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ اسی طرح کی حجت بازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا؟ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ رسول نہیں بناتے تو وہ کیسے پھر انسان کی کیفیت کو سمجھتا نا؟ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے جسے کہا جائے رکھا نا۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم ایک راوی نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے، قبلے کی طرف منہ کر لیا اور صحف کی 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ نماز میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا اگر کوئی نیا حکم آتا، لیکن میں تمہاری جیسا ہی آدمی ہوں، میں تمہاری جیسا انسان ہوں، اور انسان نسی سے ہے، نون سین یا، انسان بھول جاتا ہے جس طرح تم بولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اس لیے تو یہ قرآن ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے یا پھر سلام پھیر کر 2 سجدے صحف کے کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں کو
कलम लगा रहे थे, यानी खजूरों को जैसे कहते हैं ना भुन कर रहे थे, यानी इस तरह से जैसे एक तरह से पक रहे होते ना, उनका वो अंदाज़ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम लोग इसी तरह करते चले आए। आपने फरमाया, अगर तुम इस तरह ना करो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। उन्होंने इस तरह करना छोड़ दिया और खजूरें जिसे कहा जाए कम हो गई। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने इस बारे में ज़िक्र किया। आपने फरमाया, मैं एक इंसान हूँ, जब मैं तुम्हें कोई दीन की बात का हुक्म दूँ तो तुम उसको अपना लो, और जब मैं अपनी राय से किसी चीज़ के बारे में बताऊँ तो मैं एक इंसान हूँ। इकरिमा कहते हैं, या इसी तरह कुछ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, दुनिया के मामले में हम में से कोई किसी को राय देता है और उसके मुताबिक अगर वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती, इंसान है ना, हम में से हर एक के फैसले 100% करेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन कहने का मकसद है, दीन में ज़रा-सा भी आगे-पीछे हो नहीं सकता। मैं और आप अपनी मर्ज़ी दिखा नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी था कि बिलाशुबा मैं एक इंसान हूँ, तुम मेरे पास अपने झगड़े लाते हो। मुमकिन है तुम में से बाज़ अपने मुकदमे को पेश करने में फ़रीक़े सानी के मुकाबले में ज़्यादा चर्ब ज़बान होता है, यानी ज़्यादा मतलब अपनी बात को वाज़ेह करने वाला होता है, और मैं तुम्हारी बात सुनकर फ़ैसला कर दूँ, तो जिस शख़्स के लिए मैं उसके भाई यानी फ़रीक़े मुख़ालिफ़ का कोई हक़ दिला दूँ, तो चाहिए कि वो उसे ना ले। क्यों? क्योंकि ये आग का टुकड़ा है जो मैं उसे देता हूँ। इंसान है ना, 2 बच्चे आए झगड़ते हुए, एक आपका बच्चा बड़ा तेज़ था बातों में, इतनी चरख ज़बानी के साथ सारी बातें अपने हक़ में करवा लीं। तो दूसरा बच्चा जो इतना तेज़ या इतनी उसकी स्मार्टनेस नहीं थी बातों के अंदर, वो जिसे कहा जाए अपना हक़ छोड़ देता है, तो ये दरअसल जो उसने लिया ये आग का टुकड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम वाहिद। मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, यानी मुझे तुम पर ये फ़ज़ीलत हासिल है कि अल्लाह ताला मेरी तरफ वही करता है, और वही ये है कि उसने तुम्हें आगाह किया कि तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक है, यानी उसका कोई शरीक नहीं, ना कोई ज़र्रे बराबर इबादत का मुस्तहिक है। और मैं तुम्हें इन अमाल की दावत देता हूँ जो तुम्हें अल्लाह के करीब और उस सवाल से बहरावर करते हैं, और तुमसे अल्लाह ताला के अज़ाब को दूर करते हैं। अल्लाह के नबी तो इंज़ार करने वाले भी थे, है ना? खबरदार करते भी थे, और साथ-साथ को खुशखबरी देने वाले भी थे ना, कि जो नेक अमाल करेंगे उसके बदले क्या कुछ जन्नतें हैं ना। तो जिस शख़्स को ये ख़याल हो कि मैं झूठा हूँ, तो वो कुरान जैसा या कुरान ले आए, मैंने तुमको माज़ी की बातें बता दी, असहाबे कहफ का किस्सा वाक़या और ज़ुल्क़ुरनैन के हालात सुना दिए। तो मैं आलिमुल ग़ैब तो नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसा एक इंसान हूँ। अगर वही के ज़रिए अल्लाह ताला मुझे बातों की खबर ना देता, तो मुझे गुज़रे हुए वाक़यात का इल्म कैसे होता? लिहाज़ा जिस तरह मेरे बताए हुए माज़ी के वाक़यात सच्चे हैं, ठीक है, इसी तरह मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि मैं जिस अल्लाह की इबादत की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, वो एक ही है और उसका कोई शरीक नहीं। अब चुनांचा जो कोई अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है, तो लाज़िम है कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। जो कोई भी हम में से जो अपने रब की मुलाकात का खौफ रखता है और अपनी मुसीबतों पर अल्लाह ताला को निगरान समझता है और उसकी अताअत के कामों पर उससे सवाब की उम्मीद रखता है, तो वो क्या करे? नेक अमल करे। जो अपने रब से सवाब और नेक सिले का उम्मीदवार हो, तो उसे नेक अमल करना पड़ेगा। तो लाज़िम है मेरे और आपके ऊपर कि मैं और आप नेक अमल करें, जो कि हम सब पर वाजिब है, मुस्तहब है। अमल सालिह वो होता है, जब बता चुकी हूँ, जो तौहीद के हो, जिसके अंदर खालिस अल्लाह ताला के लिए हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी एक को शरीक ना करे। एक शख्स ने रहमत आलम से पूछा कि मैं बहुत से नेक अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और मुझे ये भी पसंद है कि लोग मेरी नेकियां भी देख लें। तो आपने फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और ये आयत उतर गई। तो कितना ही आपका दिल चाहे कि लोग आपकी नेकियों को जान लें, हाँ, इस नियत से आप बताती हैं कि लोगों को मोटिवेशन हो और लोगों के अंदर एक स्पिरिट पैदा हो, नेकी के रास्ते खुले, वो अलग बात है। लेकिन आप ये जानते हैं कि आपको अल्लाह की रज़ा है, लेकिन ख़्वाहिश ये भी है कि सबको मेरी नेकी का पता चल रहा है। तो बात ये है कि वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अपने अमाल में से हमें हमें क्या करना है? रिया को निकालना है।
हर तरह के दिखावे को निकालना है। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस अमल नहीं होगा और इत्तिबाई रसूल नहीं होगी, तो सवाब और जज़ा कैसे मिल सकती है ना? तो ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस कुदसी है, मैं शरीकों में सबसे ज़्यादा शिर्क से बेपरवाह हूँ। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें उसने मेरे साथ गैर को शरीक किया, तो मैं उसको और उसके शरीक को छोड़ देता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअ खालिस अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका हुब्ब मन युहिब्बुका हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिदा बअदल क़दा व नस्अलुका बर्दल ऐश बअदल मौत व नस्अलुका लज़्ज़त नज़र इला वजहिकल करीम व शौक़ इला लिक़ाइका फ़ी गैरि दर्रा मुदर्रा वला फ़ितनतिन मुदिल्ला। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातन मुहतदीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी सूरत कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ट्यूसडे से हम सूरह फुरकान की आयत इबादुर रहमान करेंगे 63 से ऑनवर्ड। आप में से जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर करवाना चाहता है, अपना नाम इंशाल्लाह एडमिन में से किसी को दे दे। ग्रुप आप सब ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, आप इंशाल्लाह उनको दे दीजिए। हम सूरह इबादुल रहमान की आयत जो हमने रमज़ान में सीरीज़ की थी, उन आयत को मेमोराइज़ करेंगे। कितने लोग चाह रहे हैं मेमोराइज़ करना? ज़रा सा वन टाइम कीजिए। आपने पूरी वो तफ़सीर सुनी हुई है ना, तो थोड़ी-सी इन आयत को इंशाल्लाह आप करेंगे ना, तो आपको बहुत वो कैटेगरी के अंदर आपको फ़ील होगा। ठीक है, अफ़शा कह रही हैं बारकल्लाहु फ़ीक। मैं और बाकी लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको अपनी नमाज़ों में लुत्फ़ आएगा। आप क्योंकि आपने पूरी तफ़सीर पढ़ी है ना, तो आपको वाक़यात भी याद आएँगे और आपका एक दिल लगेगा कि इंशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुमैया आप भी ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। आप सब ग्रुप में हैं ना इंशाल्लाह? तो इंशाल्लाह आपको जिसे कहा जाए इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो इंशाल्लाह आप लाइव लीजिएगा। चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। ग्रामर के सेशन बहुत छोटा-सा है आज के दिन, क्योंकि आज आपका ये कंप्लीट हो गया अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह थोड़ा-सा ग्रामर को देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा-सा ग्रामर टाइम लेती है, लेकिन दैट्स ओके इंशाल्लाह। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम लाम की देख चुके हैं, लाम की अक़साम के हवाले से कि लाम ताकीद क्या होता है, हर्फ़ जारा क्या होता है, लाम कई क्या होता है, लाम अमर। याद रखिए, बस ज़हन में इस बात को रखिएगा, सारे लाम के नीचे कसरा आती है सिवाय लाम ताकीद। लाम का ताकीद से पहले फ़तह आती है। उससे कलाम में क्या हो जाता है, ज़ोर पैदा हो जाता है। जब लाम को लाया जाता है विद फ़तह के साथ, ठीक है ना? तो उससे कलाम में क्या पैदा हो जाता है कि स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने भी लामें, चाहे वो जारा हो, कई हो, अमर हो, उन सब के नीचे कसरा आती है सिवाय लाम अमर से पहले अगर वाव और फ़तह आ जाए तो फिर उसको साकिन किया जा सकता है। आज हम देखेंगे फ़ेल अमर मजहूल, जिस फ़ेल में किसी काम के करने का हुक्म हो लेकिन हुक्म देने वाले का इल्म नहीं, तो ये फ़ेल अमर मजहूल कहलाता है। कैसे बनाएँगे? चलिए इसको देखते हैं। इसका फ़ॉर्मूला देखिए, लामे अमर प्लस मुदारे मजहूल मजज़ूम प्लस मुदारे मजहूल मजज़ूम, तो ये क्या बन जाएगा? इज़ इक्वल टू अमर मजहूल। जैसे मैं समझाती हूँ। लियुदरब, चाहिए कि वो मारा जाए, ठीक है? अब आपने क्या लामे अमर लगाया है, ली, और क्या किया आपने, मजहूल का सिगा ले लिया, दरबा यदरिबू से युदरबु युदरबु। अब आपको पता है कि मजहूल का वजन क्या है, युफ़अलु, ठीक है? तो युदरबु। अब आपको पता है कि आपने सेम वही क्या मुदारी मजहूल ले लिया, और फिर आपको बजाय लाम की वजह से लास्ट लेटर पर जज़म आ गई, लियुदरब, चाहिए कि वो मारा जाए, चाहिए कि वो मारा जाए, ठीक है? तो सिंपल आपको करना क्या है, लामे अमर जिसका फंक्शन क्या होता है, लास्ट लेटर को जज़म देना, ठीक है? और फिर आप क्या करेंगे, मुदारे मजहूल का सीगा ले लेंगे। एक होती है फ़अला यफ़अलु, ये क्या है, ये मारूफ है, लेकिन इसको मजहूल बनाएँगे तो क्या हो जाएगा, युफ़अलु, ठीक है? अब आप देखिए मुदारे मजहूल की गर्दान देखिए, लियुफ़अल, लियुफ़अला, लियुफ़अलु,
लितुफ़अल लितुफ़अला लियुफ़अलना लितुफ़अल लितुफ़अला लितुफ़अलु लितुफ़अली लितुफ़अला लितुफ़अलना लिउफ़अल लिनुफ़अल लिनुफ़अल। सिंपल सा फार्मूला, अगर आपको औज़ान याद होगा, दाई याद होगी मुदारी मजहूल की, और दाई क्या है, युफ़अलु युफ़अलु युफ़अलु, ठीक है। अब आप इस पे युदरबु बना दीजिए, ठीक है, युखलक़ु बना लीजिए, जो भी बना लीजिए। तो इसी पर आपने इंशाल्लाह युक्तबु बना लीजिए, तो आप इंशाल्लाह इज़ीली आप बना लेंगे, ठीक है ना? कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ़ आपने इतना ये करना है, क्या-क्या करना है, नंबर 1 ली लगाना है और लास्ट लेटर को जज़म दे देंगे। लेकिन अगर अगर सेकंड ग्रुप हमारा, हमने 3 मुदारे के ग्रुप किए थे ना, पहला ग्रुप में क्या था, युफ़अलु, तुफ़अलु, उफ़अलु, नुफ़अलु, ये पहला ग्रुप है ना जिसमें 5 सीग़े आ गए। तो इनके अंदर आपको इराब कैसे मिलेगा, लास्ट लेटर को जज़म। सेकंड कैटेगरी जितने भी तस्निया के सीग़े थे ना, तो वो क्या होंगे, उसमें नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, लास्ट लेटर से नून हट जाएगा। असल में ले ये क्या था, युफ़अलानी था, लेकिन ली की वजह से युफ़अला बन गया, है ना? लियुफ़अलु बन गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और थर्ड कैटेगरी वो एज़ इज़ रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लियुफ़अलना, लितुफ़अलना, क्योंकि इनका जो नून है वो बेसिकली इराबी नहीं है, बल्कि नून मुअन्नस का है। ठीक है, इसी तरह देखिए फ़ेले अमर मजहूल, फ़ेले अमर मजहूल। अच्छा, एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, जो गायब है ना फ़ेले अमर मजहूल, इसे कहा जाए जी। अच्छा नहीं, एक और एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए, फ़ेले अमर ये एग्ज़ाम्पल एक और, नसरा यंसुरु, यंसुरु से युनसरु, युनसरु बनेगा। लेकिन जब ली लगाएँगे तो क्या बन जाएगा, लियुनसर, लियुनसरा, लियुनसरु, लितुनसर, लितुनसरा, लियुनसरना, लितुनसर, लितुनसरा, लितुनसरु, लितुनसरी, लितुनसरा, लितुनसरना, लिउनसर, लिनुनसर, लिनुनसर। ठीक है? तो आपने सिंपल क्या किया, नसरा यंसुरु क्या है? आपको पता है ये बाब है आपका ना, नसरा यंसुरु। अब आपको मजहूल बनाना है, तो युफ़अलु का वज़न है, तो युनसरु, युनसरु। अब आप इससे ली लगाएँगे तो लियुनसर हो जाएगा। बिल्कुल अकॉर्डिंगली आप उसको जिसे कहा जाए मूव हो जाएँगे। अच्छा, इसको जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो चाहिए कि वो मारा जाए, चाहिए कि वो करे, चाहिए कि उसकी मदद की जाए। ठीक है? इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 87 पे, इंतहाई ताकीदी उस्लूब। इंतहाई ताकीदी उस्लूब यानी किसी भी वर्ब के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद पैदा करनी होती है, तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ठीक है? तो उसको बताया जा रहा है कि उसको कैसे देखा जाता है। तो याद रखिए कि यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु कैसे, यफ़अलन, यफ़अलन, ला यफ़अलन, दोनों में देखिए नून सकीला लगी है, ठीक है। पहला स्टेप है कि आपने क्या किया, यफ़अलु के बाद यफ़अलन लगाया। अब आप इसका ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं, वो ज़रूर करेगा, यफ़अलु वो करता है, क्या करेगा। लेकिन जब आपने इसमें नून लगा दिया, नून खफीफा, यानी खफीफ का मतलब क्या होता है, उस पर जज़्म आई हुई है, यफ़अलन, तो इसका ट्रांसलेशन अभी आप ये नहीं करेंगे कि वो करता है या करेगा, वो ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा, नून खफीफा लग गई। लेकिन अब अगर आप इसमें मज़ीद यफ़अलन के बजाय ला यफ़अलन करते हैं, अब इसमें 2 ताकीद आ गई। एक लाम की वजह से जो कि लाम ताकीद है, और एक नून खफीफा जो कि ताकीद का मफ़हूम दे रही है। अब इसका ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो वो ज़रूर ब-ज़रूर करेगा। असल में अरबी के उर्दू में ना, अरबी तो बहुत आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए बलीग़ है, तो थोड़े से अल्फ़ाज़ में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको हम उर्दू के अल्फ़ाज़ से समटाइम अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। देखिए, पहले सिर्फ़ नून ख़फ़ीफ़ा लगा, ऐसा नून विद जज़म के साथ, तो इसका ट्रांसलेशन आप यफ़अलु का करते थे, वो करता है या करेगा, लेकिन अब जब नून ख़फ़ीफ़ा लगा तो वो ज़रूर करेगा। लेकिन अब नून ख़फ़ीफ़ा के साथ एक लाम भी लग गया, जिसको लाम ताकीद कहा जाता है। ला
یفعلن، لا یفعلن، تو لام تاکید کا ہے اور نون خفیفہ تاکید کا۔ اب اس کا ٹرانسلیشن آپ کیسے کریں گے؟ وہ ضرور بضرور کرے گا، وہ ضرور بضرور کرے گا، دو تاکیدیں آ گئیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں ایک مزید سب سے انٹینسو تاکید آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ لا یفعلن، لا یفعلن۔ اب دیکھیے لام تو تاکید کا ہے لیکن ساتھ میں نون ثقیلہ آ گیا ہے، ایسا نون جو کہ شد کے ساتھ ہے، ایسا نون جو کہ شد کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے زیادہ انٹینسو تاکید ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ وہ لازمن کرے گا، وہ لازمن کرے گا، وہ لازمن کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر فعل مضارع جو کہ جس کا ٹرانسلیشن آپ پریزنٹ یا فیوچر میں کرتے ہیں، اس کے اندر تاکید کا اگر ہمیں مفہوم پیدا کرنا ہے تو ہم نون خفیفہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لام تاکید کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں نون ثقیلہ کا۔ سب سے زیادہ انٹینسو ہے یہ تاکید۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ اس کی گردان بنا کے بتا رہے نون ثقیلہ کی، آپ نے بس ایک گردان دیکھ لینی ہے، لا یفعلن، لا یفعلن۔ اسی طرح آپ اس کو لانی، سوری ناٹ لانی، لانی، اس طرح سے آپ اس کو کرتی جائیے، لا یفعلن۔ اسی طرح پوری آپ نون ثقیلہ کے ساتھ، تو یہ موسٹ انٹینسو تاکید ہے کہ لام بھی ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ۔ نون ثقیلہ کے سب جب اس کے ساتھ تاکید لگائیں گے تو ہر صیغے کے اندر تاکید آئے گی، ہر صیغے کے اندر تاکید آئے گی۔ آپ ایک دفعہ اس کو بنا لیجیے گا، لیکن جب نون خفیفہ لگاتے ہیں یعنی ایسا نون جو کہ جزم کے ساتھ ہے، تو ہر صیغے کے اندر ہم اس کا صیغہ نہیں بنا سکتے۔ جو صیغے بن رہے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا افعلن، ٹھیک ہے؟ یہ بس یہ صیغے بنیں گے ساتھ ساتھ، لا یفعلن، لا تفعلن، لا نفعلن، لا نفعلن، ٹھیک ہے؟ باقی جو آپ کو صیغے تثنیہ کی ہیں یا جمع کے دو صیغے، وہ نون خفیفہ کی گردان کے اندر استعمال نہیں ہوتے، نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، باقی مثالیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی۔ تھوڑی سی آپ انشاءاللہ اپلیکیشن کر لیتے ہیں لاسٹ آیت کی، میں اگر کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کو اوپر سے ہلکا سا بتا دوں۔ کیا ہے آیت کو دیکھیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قل کیا ہے؟ امر کا صیغہ، قال یقول سے قل فعل امر واحد ہے نا، قال یقول، اس کا جو مصدر آتا ہے قولن، کہنا، آپ کہہ دیجئے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، بے شک سوائے، یاد رکھیے انا جو ہے، انا، انا کا انا، لیت لک، انا لعل، آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، لیکن جب اس کے ساتھ ماں لگتا ہے نا تو یہ انا کے اثر کو اسٹاپ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے، یعنی بات کو ایک طرح سے حصار میں آ گئی، یعنی یہ بات کمپلیٹ ہو گئی کہ انا بشر، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا۔ اب یہاں پہ انا کی ضمیر آئی جو کہ واحد متکلم ہے نا، یہ نکرہ ہے، اور یہ دیکھیے بشرن، یہ اس کی خبر ہے، میں انسان ہوں، پورا جملہ اسمیہ ہے، اور انا کا اثر کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انا کے بعد جب ماں لگتا ہے تو وہ انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انا، یہ انا کا، یہ انا کا یہ جسے کہا جائے انا جو ہے بیسیکلی یہ مبتدا ہے اور بشر اس کی خبر ہے۔ مثلکم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، تمہارے جیسا۔ یوحا، یوحا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، مجہول ہے، انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ اوحا یوحی، اس کا مصدر آتا ہے ایحاء، ٹھیک ہے؟ ایحاء، اس کا مصدر آتا ہے وہی کرنا، وہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں، الیہ، یہ کیا ہے؟ جار، جار ہے نا، جار یعنی حروف جارہ ہے، الیہ، میری طرف، جار مجرور، مرکب جاری ہے۔ انما، انا اگین دیکھیے، انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، اور فا جو ہے یہ جو ماں ہے اس کو ماں کافہ کہا جاتا ہے، حسر کے لیے آتی ہے، یہ انا کے عمل کو اسٹاپ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے انا کا عمل اسٹاپ ہو گیا۔ اب دیکھیں انما، یہ آپ کہیں گے کلمہ حسر ہے، اب انا کا کوئی اثر آپ کو الہکم میں نظر نہیں آئے گا۔ الہکم، تمہارا الہ، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ مبتدا و ہوا مضاف بھی ہے، اور الہ واحد یہ اس کی خبر ہے، مرکب توصیفی بن کے، مرکب توصیفی بن کے اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔
پھر اب لاسٹ آیت کا تو ٹائم بس انشاءاللہ یہیں تک روک لیتے ہیں، باقی آپ نے اسی طرح بس کرتے جانا۔ فا عطف کا ہے، من شرطیہ ہیں، اور کانا جفعل ناقصہ کے اندر آتا ہے نا، کانا یکونو کونن اس کا مصدر ہے، یرجو بھی رجا یرجو سے یہ بھی جسے کہا جائے مصدر اس کا رجاؤن آتا ہے، یہ بھی ورب ہے نا، ورب فعل مضارع ہے۔ لقاء جو ہے وہ آپ مداف پڑھ چکے ہیں نا انشاءاللہ، اور لقاء ربی اپنے رب کی ملاقات، ٹھیک ہے نا، تو یہ مداح پورا ایک وہ بن رہا ہے نا۔ اور پھر آپ نے فل یعمل لام آ گیا نا، فا سے پہلے ابھی آپ نے لام امر کو دیکھا تھا نا، لام امر جو ہوتا ہے ویسے تو لی یعمل تھا، لیکن فا لگ گیا تو لام کی حرکت ہٹ گئی اور فل یعمل ہو گیا، اسی لیے لام کے اوپر شد آ رہی ہے، سوری سکون آ رہا ہے، کیونکہ لی ہے یہ لام امر کی وجہ سے، پس چاہیے کہ عمل کریں۔ کیسا عمل؟ عملاً صالحا، مرکب توصیفی، اور پھر اپنے رب کی لا یشرک، کہ آپ کو پتہ ہے اشرک یشرک ہو، اشراک سے نا شرک کرنا، تو یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا، واحد مذکر غائب کا فعل نہیں ہے، اسی لیے لام کاف کے اوپر سکون آ رہا ہے۔ بی عبادتی، بی حرف جر ہے، عبادتی جو ہے وہ اس سے مجرور ہو جائے گا، ربی ہی مضاف الیہ، احدا کسی ایک کو نا، یہ اس کی خبر آ جائے گی۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا الحمدللہ سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیت اور لاسٹ 10 آیت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نوازوں میں اس کو اپلائی کرنے والا بنائے اور اس کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر اس کی لاسٹ آیت 73 تک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ پلیز اپنے ہوم ورک بھیجنا نہ بھولیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔